We are shifting focus now to Himachal Pradesh, which seems to be on the brink of a massive financial crisis. The hill state, whose economy is largely banking on tourism, horticulture and hydropower, is buried under a mountain of debt. 75,000 crore rupees to be exact. The state government was already saddled with the previous loan of 11,000 crore rupees. It's incurring interest, and yet it has gone ahead and applied for an 800 crore rupee loan. Now, while the state government seems intent on fulfilling its pre-poll promises, remember the government is just 6 months old. The brunt has to be borne by the people of the state, specifically employees of the state government. Close to 15,000 government employees in Himachal have admitted on record that they were not paid monthly remuneration till today. Now, is this a temporary hiccup? It would appear not, because delays in salaries have been a trend since the beginning of this year. Both salary and pension are usually disbursed on the 1st of the month, like for everyone. But the January salary was disbursed on the 4th of February, pension on the 7th. For February, salaries came on the 3rd of March and pension towards the end of the month on the 23rd of March. The delays only increased. 13th April was when salary was disbursed for the month of March and pension was given on the 21st. The trend continued, the pattern only worsened. As far as April was concerned, pension for that month was received on the last day of the month. Today, as of today, that is the 14th of June, neither salaries nor pensions have been disbursed for the month of May. The assurances have come to the fore from the state government, but those salaries have not been disbursed yet. Now, the BJP links this crisis to the pre-poll promise that was made by the Congress party, that of reinstating the old pension scheme. Despite facing a mountain of debt, the 6-month-old Congress government fulfilled this promise. But at what cost? As far as this promise is concerned, 1.36 lakh government employees benefited, the annual burden of which was 800 to 900 crore rupees on the government. What's the kind of impact that we're seeing? There's no money to pay salaries and pension, or at least there's a delay in that. There's no money for developmental projects either. What happens next is there's an additional loan of 800 crore that was raised. But the government is assuring even today. The government says its focus is on resource mobilization. They're taking measures to generate additional revenue. That's what they say. But the state of Himachal Pradesh has accumulated a whopping debt of 75,000 crore rupees. Despite facing that mountain of debt, the OPS was brought in. That placed an additional debt. They also promised free electricity up to 300 units monthly, for which the cost is similar to 800 crore per year. Now, the impact is being felt on the economy. The state has no money for paying their employees, even for developmental works. Is this the cost of freebies that the people of Himachal Pradesh are now facing? Now, Punjab is one such example. There are several other states. It's not just Himachal. As far as Punjab is concerned, the Aam Aadmi Party promised free power and even cash to every woman monthly. The cost of such freebies is 20,000 crore rupees. This is a state which is already reeling under debt. So it's not just a pattern that we are seeing in Himachal. There are several other states like that, including that of Karnataka. Recently, the Congress promised 5 guarantees there, the cost to which is going to be around 50,000 crore rupees per year. That is the kind of debt that these states are incurring. What is the solution? As far as Himachal goes, the solution is there. The implementation is taking time, but it will happen. That's the assurance that came to the fore from the state government. खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। HRTC का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। नहीं, HRTC की सैलरी भी हम जारी कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ गया है और हम जारी कर रहे हैं। Former Chief Minister of Himachal Pradesh, leader of the BJP, Jairam Thakur, joins us on this broadcast to put this in perspective. Why exactly we're seeing this kind of financial crisis in Himachal? So, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए here on CNN News 18. There are 15,000 government employees. इस महीने की सैलरी अभी तक डिसबर्स नहीं की गई है. हमने अभी सुना चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, ये एक टेम्पररी हिकअप है. बट क्या आपको लगता है कि ये टेम्पररी है या इससे कोई और बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है और ये बस शुरुआत है? एक तो मैं ये बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि ये अभी नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है और ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ता जा रहा है। और जब इनको मालूम था कि हमारी आरडीजी अब कम हो रही है, अब इनको ये भी मालूम था कि हमारे जो जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलता है वो भी अब मिलना नहीं है, क्योंकि एक
वो नीति थी कि वो 5 साल के लिए था। ऐसे में अपने स्टेट को कैसे चलाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, लेकिन बहुत हल्के में लिया, कैजुअली लिया। और ऐसे में एक परिस्थिति आज ये बन गई है कि 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में से 3 महीने में ही इन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया। 7,000 करोड़ का ऋण ले लिया, जो आज तक के हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा ऋण की दर एक टाइम स्पैन के हिसाब से आंकी गई है। और दूसरी बात, उसके बावजूद भी 7,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के बावजूद भी ओवरड्राफ्ट अभी तक कायम है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट अभी तक भी हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब सीधा है कि आपके बिल ट्रेजरी में रुक जाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे। कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों की पेंशन के अलावा डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स जो क्लियर होने हैं, जो जिसके लिए बजट क्लियर होना है, वो सारी चीजें ट्रेजरी रोक देगी। तो वो एक सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में आने की स्थिति में हो गई है, और जिसको वर्तमान कांग्रेस सरकार बहुत हल्के में ले रही है। और मैं समझता हूँ कि एक पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिफ्लेक्शन ये है, और ये आज का ही नहीं है, ये परिस्थिति काफी दिनों से दिख रही है, बन रही है ये, लेकिन उसके बावजूद उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और निश्चित रूप से इस कांग्रेस पार्टी की सारी चीज को लेकर के जो काम करने की शैली है, काम करने का तरीका है, उसका परिणाम है। जी, आपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात की, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी ठाकुर जी कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जो प्रॉमिस किया था, जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, क्या आपको लगता है उसके वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ गई है स्टेट के लिए? देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि अभी ओपीएस का इम्पैक्ट तो अभी आना शुरू नहीं, क्योंकि ओपीएस अभी तक लागू हुई ही नहीं। अभी तो ऑप्शन मांगी गई है। अभी तो उन्होंने सिर्फ घोषणा की है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, और ओपीएस को लागू करेंगे तो उसके कारण फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसकी जब आई नहीं है, तो उसके कारण इसको नहीं कहा जा सकता। वो तो बहुत सीवियर होगी जब ओपीएस का बर्डन आएगा स्टेट के ऊपर, ओपीएस की शुरुआत होगी, तब तो बहुत ज्यादा स्थिति और भी ज्यादा खराब होने के दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति स्टेट की जो बनी है, वो पुअर मैनेजमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका हो नहीं पाया, और जिसके कारण स्थिति आ गई है। और अभी आपको बताऊं कि 6,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी उन्होंने निकाल दिए हैं 6 महीने में। और अभी इसके अलावा 6,000 कर्मचारी निकालने के अलावा कुछ 2,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जो आउटसोर्स पे लगे हैं, जो कोविड के दौरान लगाए गए थे, जिसमें नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और भी कर्मचारी हैं। उनको 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिल पाई। तो बहुत खराब सिचुएशन, जिसको कांग्रेस सरकार जो उसका आकलन नहीं कर पा रही है, और उसको बहुत हल्के में ले रही है, और हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। जी, आपको क्या लगता है ठाकुर जी, ऐसे क्या निर्णय हैं जो अभी लेने चाहिए, या जो निर्णय ले चुके हैं शायद उनको वापस ले लेना चाहिए, ताकि ये क्राइसिस थोड़ी मिटिगेट हो सके? देखिए, तुरंत मुझे लगता है कि कुछ निर्णयों की ओर इनको बढ़ना चाहिए, और खासतौर से जो एक तो हमारी इनकम के सोर्सेज और क्या जनरेट हो सकते हैं, उस पर काम करना होगा। कहने से नहीं हो पाएगा, सिर्फ हम बात करने से करेंगे, वो व्यवहारिक रूप से उनको कुछ उस बारे में निर्णय करने पड़ेंगे। दूसरी बात, कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त निर्णय करने पड़ेंगे। ये जो फ्रीबीज की तरफ जा रहे हैं कि ये भी मुफ्त देंगे, ये भी मुफ्त देंगे, ये सारा करेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रदेश बहुत बड़े संकट में हो जाएगा आर्थिक। ये फ्रीबीज की बात आपने की है, सिर्फ हिमाचल में नहीं है, ये प्रॉमिस उन्होंने अभी कर्नाटका में भी किया है, उस पर भी काफी बहस चर्चा हो रही है कि अब हम ये दे सकते हैं, अब हम ये नहीं दे सकते। तो क्या आपको लगता है जब ये प्रॉमिसेस किए जाते हैं मैनिफेस्टो में वोटर्स को, वो सिर्फ पावर के लिए, सिर्फ वोटों के लिए की जाती है, उसमें और कोई थॉट नहीं होता? क्या आपको लगता है यही स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए है, और व्यवहारिक पक्ष उनको भी मालूम है कि ये देने की स्थिति में नहीं, लेकिन उसके बावजूद सत्ता चाहिए। बस किसी तरह से लोगों को गुमराह करके हम सत्ता हासिल कर लें, और उसके बाद आगे की बात उसके बाद सोचेंगे।
यही इन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया। और कर्नाटक में तो 5 गारंटी दी इन्होंने, लेकिन हिमाचल में 10 गारंटी दी। और मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले दिन से कहा कि 10 जन्म लग जाएंगे, उसके बावजूद भी पूरा हिमाचल पूरा बेचना पड़ेगा, तभी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्टैंड ले सकती है? जैसे हम कह रहे थे, जैसे हमारी बात चल रही थी कि 800 करोड़ का जो डेट है, जो लोन मांगा है हिमाचल की सरकार ने, अब ये लोन मैनेज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जो ऑलरेडी डेट चल रहा है, जैसे आपने भी कहा ओवरड्राफ्ट भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सेंटर को भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आपको इस प्रकार से लोन्स आप अंधाधुंध लेते जाएंगे, अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो लोन की लिमिट जो है वो 4% से बढ़ा करके 6% कर दी पीछे बजट सत्र में। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि लोन लेने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक फॉर्मूला है, जो जीडीपी का 3.5% जो है लोनिंग, आप उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी लिमिट बनती है। लेकिन केंद्र ने सिर्फ इतना ही कहा है उसमें कि जो एक्स्ट्रा बोरिंग जो है वो अलाउ नहीं होगी, इससे ज्यादा जो 3.5% से ज्यादा अलाउ नहीं होगी। ये सभी स्टेट को कहा है, और पर्टिकुलरली उन स्टेट को जिन्होंने कहा कि हम अब एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इस बात को कहा है, और हिमाचल प्रदेश को इस बात The center has made its stand clear. Jairam Thakur ji, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए here on CNN News 18. Whether this crisis can be mitigated for Himachal, well, the people of Himachal surely hope so.